साइड को, शॉर्टेस्ट साइड को रखना चाहिए ना वर्टिकल। ना ना, इट्स ये ना, its longest side 100 mm long is in VP and 30 degree inclined to the HP. So this is the longest side. जो hypotenuse होगी वो longest होगी ना, ये जो hypotenuse है ये hypotenuse longest होगी. यस सर। This angle is 90 degree. ठीक है ना. So this is the longest side, hypotenuse is the longest. So this is perpendicular to XY रखा हमने, और ये सरफेस पैरेलल टू VP है, इसलिए हमें फ्रंट व्यू में ट्रू शेप मिल रहा है. This is A dash, this is B dash, and this is C dash. Therefore, now we'll project the top view. So this is the projector for the top view. This is the projector of C dash. C का प्रोजेक्टर है, इसके ऊपर C रहेगा. Now top view क्या होगा? This A and B point will coincide, and here it comes the C point. So the top view will be parallel to XY. So this is the top view, parallel to XY. ठीक है. So A, B, and this is the C point. So in the top view we'll see a line, and in the front view the true shape of this set square. ठीक है. Now we have to give surface inclination first. So if the surface is inclined, this is, say this is the lamina, we are giving angle to this, इसको angle दे रहे हैं, ये rotate करेंगे. So what will be the change in the front view and the top view? There will not be change in the length of the top view. Top view का dimension में कोई change नहीं होगा. अभी XY से parallel है, जब इसको हम surface incline करेंगे तो टॉप व्यू रोटेट होगा सिर्फ, और फ्रंट व्यू का शेप में चेंज होगा. ठीक है. फ्रंट व्यू शेप विल चेंज. सो अब क्या करना है? नाउ वन मोर थिंग, कि जब हम इस टॉप व्यू को इंक्लाइन करेंगे, सो वी हैव टू कीप दिस साइड इन वर्टिकल प्लेन. इसको वर्टिकल प्लेन में ही रखना है और फिर घुमाना है. मतलब ये, if this is your vertical plane, this is your reference plane, तो ऐसे या ऐसे. So this, ये साइड यदि VP में रहेगी तो इसका टॉप व्यू कहाँ होगा इस साइड का? Where will the top view of this side lie when this side is in VP? When this side is in VP, कब होगा? So that will be on XY, क्योंकि ये साइड, यदि ये लाइन A dash B dash VP में है तो इसका टॉप व्यू XY पे आएगा. तो हम ये इसका टॉप व्यू XY पे रखा, मतलब ये AB को यहाँ XY पे रखा और फिर इसको रोटेट किया. Then we have rotated this line. So this is the angle 45 degree. इसको हिंज करके, इस साइड को हिंज करके, मतलब ये दरवाजा खोला हमने ऐसा. Hinge, this is the side. So ये हमने रोटेट किया. So this point is A, this point is B. टॉप व्यू हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये XY पर है. So this is in VP, ये VP में है. So this is the view, the top view. So its length is this. ये वाली लेंथ ही रहेगी इसकी, A to C and B to C is this length. Now we'll project the front view. ठीक है. सो ये प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ किया. These are the projectors. इन प्रोजेक्टर्स पर A1 डैश, B1 डैश और C1 डैश पॉइंट रहे. इन पॉइंट्स का रिलेशन विथ HP वो चेंज नहीं हुआ. इनका रिलेशन VP से चेंज हुआ है. देखो, अभी VP से A और B का डिस्टेंस इतना था, अब ये 0 है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इतना था जो कि अब चेंज हो गया क्योंकि एंगल 45 डिग्री का हो गया. द एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है. बट हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं हुआ. मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी XY से जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो उतना ही है जितना पहले था, ये भी जितना. तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे. दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स. देन वी लोकेट द पॉइंट इज A1 dash.
So this point will be A1 dash, because A1 dash is a point of intersection of projector of horizontal projector of A dash and vertical projector of A. So this point is your A1 dash, and this is your C1 dash, and this point is B1 dash. So this is the new front view. So this is not the true shape, this is the true shape. Okay, so this is the new front view, the second front view. This is second top view. Now we have to rotate this, क्योंकि ये edge, this edge A dash, A1 dash, B1 dash is inclined with the HP. So this has to be inclined with XY. कितने से incline करना है? This must be the true length, क्योंकि edge inclined है, न कि edge का front view. Okay? Therefore we have kept it perpendicular to XY. So we'll tilt this figure. ये front view के shape में change नहीं होगा. There will not be any change in the front view shape, क्योंकि as far as this angle 45 degree is fixed. If this angle change, then this shape will change. ठीक है? So this edge को incline करना है, so ये figure rotate हो जाएगा. This front view will get rotated. So this is the angle. So the angle is say कितना angle दिया? So it is 30 degree. तो ये 30 degree हमने angle बना. Now we can rotate this in this direction or in this direction. ऐसा. So here it is rotated counterclockwise direction. This side is rotated in counterclockwise direction. इस तरफ rotate किया. This is the angle 30 degree. इस लाइन के ऊपर A1 dash B1 dash आएगा. ये A1 dash में. ये पूरा फिगर मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया. This front view. This whole front view is reproduced here. So this point is B1 dash. This is A1 dash. This is C1 dash. So and this angle is 30 degree. So this longest side is inclined at 30 degree with HP, while its surface is making an angle of 45 degree with VP. Now project the next top view. So A1 dash से projector, C1 dash से projector, B1 dash से projector. So अभी जब when we have rotated this front view, ठीक है, front view को rotate कर रहे हैं, तो vertical plane से इन points का distance एक बार जो ये fix हो गया यहाँ पर, ये इसमें ये change नहीं होगा, सिर्फ HP के साथ वो relation change हो रहा है. इसलिए यहाँ से projectors, horizontal projectors आएंगे. सर A1 B1 का वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री है ना? A1 B1 का A1 डैश B1 डैश का वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री है भाई. XY से है ना, HP से inclined है ना, that line is inclined with the HP. So this angle is this. This is the true length. A1 dash B1 dash is the true length. ये देखो, ये ट्रू लेंथ रहे, इसलिए हम इसको 90 डिग्री पे ही रखा है. ठीक है. सो इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अभी XY से देखें तो दैट एंगल इज 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री का है. सो दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री. तो ये हमने 30 डिग्री पे किया इसको. सो नाउ दिस पॉइंट इज A1. ये A1 हो गया और B1 भी यहां मिलेगा, ये B1, and then this is the C1. So join this in the top view. So you will have A1, B1 and C1. This is the required top view. ठीक है. So this is A1, B1, C1. ये required top view. Now we can draw the side view. अब हम side view draw कर सकते हैं. ठीक है. So this is how you have to solve the problem. This is second example that we have done today. Is there any doubt? सर बस स्टार्टिंग में डाउट है सर. ये सब समझ आ गया सर आपने कैसे कन्वर्ट किया इसको यहाँ फर्स्ट फिगर से थर्ड फिगर तक. सर स्टार्टिंग फिगर कैसे बनाते हैं, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन विद साइड विद वर्टिकल कैसे डिसाइड करते हैं सर? हाँ देखो, साइड वर्टिकल जो एज है ना, व्हाटएवर में भी देयर लॉन्गेस्ट एज हो कि शॉर्टेस्ट एज या कोई भी एज हो, जो एज जिस प्लेन से इंक्लाइंड है ना,
तो उसको इनिशियली हम परपेंडिकुलर पोजीशन में रखेंगे, इनिशियल फ्रंट व्यू में वो। ठीक है। जैसे इस वाले केस में ये लॉन्गेस्ट एज ये एचपी से इंक्लाइन थी, तो हमने इस एज को एक्स वाई के परपेंडिकुलर रखा। ठीक है, सरफेस को पैरेलल, ये सरफेस पैरेलल, सरफेस जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उसके पैरेलल रखना है। तो यहाँ पे सरफेस वीपी से पैरेलल थी, तो वीपी से पैरेलल रख के हमें फ्रंट व्यू ट्रू शेप का मिलेगा। तो हम पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर जो A1 डैश B1 डैश C1 डैश की जो लेंथ रहेगी वो A डैश B डैश C डैश के बराबर रहेगी। A1 डैश B1 डैश ये लेंथ, हाँ सर। सर ये थर्ड फिगर वाली, ये वाली लेंथ, हाँ सर। हाँ ये वाली लेंथ देखो, A डैश B डैश और A1 डैश B1 डैश ये दोनों लेंथ बराबर है। यस सर। और यही जो सेकंड वाला हमारा फ्रंट व्यू है ना, इसका शेप चेंज नहीं हुआ, मतलब इसके किसी भी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है। ये A1 डैश, ये B1 डैश लेंथ, यहां पर ये A1 डैश और यहां पर ये B1 डैश बराबर है। ये A1 डैश, ये C1 डैश, ये A1 डैश, ये C1 डैश बराबर है। ये C1 डैश और ये B1 डैश, ये C1 डैश, ये B1 डैश, ये बराबर है। मतलब यही वाला फिगर यहाँ रिप्रोड्यूस हुआ है, दिस इज द सेम फिगर, ये वाला है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों यस सर। डायमेंशन में। ठीक है, ठीक है। और एनी अदर डाउट, कुछ और डाउट है किसी को? चलो इसको हम बना के बताते हैं ना। लेट्स ट्राई दिस इन ऑटोकैड। ऑटोकैड की स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ठीक है सर इसका लास्ट वाला फिगर देखिए ना, ये सही नहीं दिख रहा। ये वाला, हाँ सर, थर्ड नंबर में लास्ट नीचे जो है ये वाला। ये फिगर क्यों? क्यों उस पे जो स्क्रीन थी उस पे अलग दिख रहा था, इस पे अलग दिख रहा है। कौन सी स्क्रीन पे अलग दिख रहा है? तो ये जो मेरी स्क्रीन पे करिए ना सर, मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, आपने जो ड्रॉ किया, आपकी स्क्रीन कहाँ है भैया? पिंक करना पड़ेगा। कहाँ है? हाँ चाहिए पुष्पेन, एक मिनट। सर ये वाला है स्क्रीन, सर ये वाला फिगर। ये कैसे बना है? इसका इनिशियल का है? हाँ इनिशियल तो ये रहा, और सेकंड वाला फिगर भी ठीक है। थर्ड वाले फिगर, हाँ इसमें इसलिए अलग है कि इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट शुड बी इन द वीपी। लॉन्गेस्ट साइड वीपी में रहना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट साइड यदि वीपी में है तो वो उसका टॉप व्यू एक्स वाई पे आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, ओके सर। हाँ इसलिए ऐसा आ रहा है। चलो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये लाइन कमांड ली, हमने एक लाइन बनाई। सो दिस इज अवर एक्स वाई लाइन। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है। इसको हम कलर, कोई कलर दे देते हैं। चलो ये रेड कलर की एक्स वाई लाइन होगी। ठीक है, और फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू बनाना है ट्रायंगल। सो फ्रंट व्यू में ट्रायंगल, तो ये हमारी वो लॉन्गेस्ट साइड जो है वीपी में, ये ले लेते हैं। अभी मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द साइड, और यहां से जो है वो 30 डिग्री पे लाइन बना लेते हैं, 60 डिग्री
60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री, और यहां से 30 डिग्री की लाइन, ये ठीक है। अभी मैंने डायमेंशन लिए नहीं एक्चुअल, बट दिस इज माय रेक्टेंगल। ठीक है। नाउ ये अब मैंने ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, अब ये दोनों देखो यहाँ पर बड़ी बन गई है, ये लेंथ से मतलब मुझे ये एक्स्ट्रा पोर्शन रिमूव करना है। आई हैव टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा पोर्शन यहां से। सो मैं क्या करूंगा, देयर इज अ कमांड कि टू ट्रिम दिस एक्स्ट्रा पोर्शन। सो दिस इज द ट्रिम कमांड। या तो आप आइकन पे क्लिक करें यहाँ पे ट्रिम पे, या यहाँ पर टाइप करें ट्रिम, PRIM, ये ट्रिम कमांड। तब यहाँ से आप ट्रिम कमांड में इंक्लूड हो। देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सिलेक्ट टू एक्सटेंड, और है ना, कौन से ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है और इसको ट्रिम करना है। ठीक है। सो दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रिम, ये ट्रिम हो गया। दिस कमांड इज ओके, ट्रिम कमांड। यस सर। ये ट्रिम कर दिया हमने, तो ये हो गया। सो दिस इज अवर सेट स्क्वायर 30-60। ठीक है। नाउ टॉप व्यू। सो व्हाट विल बी डू कि हियर वन ऑफ द साइड, इसकी एक साइड वीपी में है और सरफेस इंक्लाइंड है। तो जो हमारी पहली वाली पोजीशन थी जिसमें हम कहते थे कि हम सरफेस को वीपी के पैरेलल रख देते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम ये पूरा का पूरा प्लेन ही वर्टिकल प्लेन में रख देते हैं। तो ये हमने पूरा प्लेन वर्टिकल प्लेन में रख दिया, मतलब ये साइड भी वर्टिकल प्लेन में है, ये साइड भी वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है। सो अब इसका टॉप व्यू हम बना लेते हैं। ये प्रोजेक्टर बनाया, प्रोजेक्टर लाइन। दिस इज आवर प्रोजेक्टर लाइन, और दूसरी प्रोजेक्टर लाइन यहां से ये प्रोजेक्टर लाइन बनाई। ठीक है। सो टॉप व्यू यहां से लेके यहां तक आएगा, ये होगा टॉप व्यू। दिस इज द प्रोजेक्टर लाइन। तो इसको हम चेंज इट, कलर कर देते हैं। प्रोजेक्टर लाइन को हम ये ब्लू कलर से शो कर देते हैं, इस कलर से शो कर देते हैं। ये प्रोजेक्टर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये XY लाइन। टॉप व्यू यहां से लेके यहां तक टॉप, ये रहे, ये टॉप व्यू। तो पूरा प्लेन वर्टिकल प्लेन में है, इसलिए पूरा टॉप व्यू XY पे आ रहा है। से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। ठीक है। तो टेक्स्ट सिलेक्ट करो एंड राइट A डैश। ठीक है। वो छोटा बना। ठीक है। इसको मूव कर देते हैं यहां पर। सो इसको एरो को हम इस तरह से इसकी लेंथ कम कर लेंगे, और कैरेक्टर्स जो लाइन लेंथ है वो हमने ये कम कर दी। ये इसकी हाइट का है। सो दिस इज द हाइट। हम इसको करेंगे मूव। ठीक है। मूव कमांड कैसे काम करेंगे, यहां पर है, इसको सिलेक्ट करा, M को प्रेस किया बटन को, ये रहा मूव, इसको सिलेक्ट किया। फिर इट इज आस्किंग फॉर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किस पॉइंट से रख के आपको इसको मूव करना है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ कहीं सिलेक्ट किया कि इस पॉइंट से इसको मूव करना है, तो हम इसको यहाँ से मूव करके ले आते हैं। सर आपने ये A डैश कैसे लिया एक बार? ये A टेक्स्ट यहाँ से इंसर्ट किया। ओके। ठीक है।
ये आइकन लिखा है, आइकन है टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये आ गया। ठीक है, अभी ए बहुत छोटा है, दिख ही नहीं रहा हमें है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे, इस लेटर के यहाँ पे रख के, एक मिनट, हाँ 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 बोलिए। आप मेरे को व्हाट्सएप तो करो, कंट्रोलर को भी भेज देंगे अपन। हाँ आप वो चढ़वा दो, कंट्रोलर को भेज दो और उसमें हाँ मार्क करो। हाँ हाँ ठीक है, तो हम इस लेटर के यहाँ पे जाएंगे, ये देखो, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नाउ विल सिलेक्ट दिस, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम इंक्रीज करेंगे। अभी यहाँ पे इट इज 2.5 टेक्स्ट हाइट जो है, इसको हम इंक्रीज कर देंगे। विल कीप इट 5 और 7 कर लो। तो दिस इज 7 विजिबल है नहीं, बस और बड़ा कर देते हैं। क्या हुआ? ये फिफ्टीन भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है, लेट इट बी, और यहाँ से करके 30 कर दो। ठीक है, सो नाउ इट इज विजिबल, अब विजिबल है, बट ये फिगर के अंदर आ गया। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एम बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, इंटर करेंगे, पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, बेस पॉइंट जहां से मूव करना है, और यहाँ रख देंगे। सो दिस इज ए डैश। ठीक है, अब ऐसे ही हमें बी डैश चाहिए यहाँ पे, अब सी डैश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना, ये क्लिक करेंगे इसके ऊपर और कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, देन वी कंट्रोल वी, ये कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी कॉपी, इसको पेस्ट कहाँ करना है, तो यू गो टू द लोकेशन, यहाँ पे क्लिक कर दो जहां भी है। हाँ शर्मा जी, हाँ बोलो, हाँ बोलो। नहीं, वो कॉपी अपन थोड़ी भेजते हैं वहां पे, उनको चार्ट भेजना पड़ेगा, इसकी एंट्री करवानी पड़ेगी फिर, या तो बात करते हैं, तिवारी सर से बात करो, क्या बोलते हैं, फिर मैं बात करता हूँ, है ना। हाँ 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 हाँ, वही वही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप बात करो, मैं भी वो करता हूँ फिर बात, है ना। चलो, ए डैश, सो बी डैश, देन सी डैश। ठीक है, तो ये यहाँ रखा, डबल क्लिक, सी डैश, ये ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये टेक्स्ट प्लेसमेंट। ठीक है, हमारा फिगर ये हो गया। सिमिलरली टॉप व्यू को भी देना है, तो टॉप व्यू का ये पॉइंट कौन सा होगा, दिस इज ये पॉइंट होगा
टॉप व्यू का पॉइंट है ना, तो ए और बी, ठीक है, ए और बी होगी, ए बी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट सी। ये सी पॉइंट, तो ये टॉप व्यू, ठीक है, एक्स वाई पर है। क्यों किया हमने ऐसा कि हमें एक साइड इसकी जो है वो वीपी में ही चाहिए थी, तो गलती ना हो। जैसे अभी हमसे गलती हुई थी कि हमने यहाँ बना दिया था और यहीं से फिर इसको कंटिन्यू किया, तो डिफरेंस आ गया था कि सॉल्यूशन में और आपके स्टूडेंट आपने किसी एक ने जो बनाया था, ठीक है, हारूप ने बनाया था। तो अब क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कि वी हैव टू रोटेट दिस टॉप व्यू। अब टॉप व्यू को रोटेट करना है, तो लेट्स सिलेक्ट, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको कर लेते हैं कॉपी। हाँ, अच्छा, तो मेल कौन सा, वो तो चार्ट वहां से कंप्यूटर सेंटर से जाएगा ना। हाँ हाँ, तो एक काम करो, ये चार्ट कंप्यूटर सेंटर से मंगाओ, कंपेरेटिव वाला, जो कि ये ए के मार्क्स, बी के मार्क्स, और फिर जो अपन ने जो सी के जो दिए वो चार्ट मंगवा लो कॉपी, और उस चार्ट को अपन यहाँ से फिर भेज देंगे एग्जाम कंट्रोलर के पास। अच्छा, बुलवा लिया खुद ही, ठीक 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 है, ठीक 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 है। तो हमें इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करना है तो इसको पहले क्या करें, कॉपी करके यहाँ ले आते हैं और फिर रोटेट करते हैं इसको। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, कहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और देखें कि ऑप्शन है क्या, कॉपी सिलेक्शन, पॉइंट पूछ रहा है क्या, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यस, ये देखो स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, बेस पॉइंट कौन सा, ये वाला, ये बेस पॉइंट हो गया कॉपी का। नाउ यहां से हम कॉपी हो रहा है ये, और अब इसको हम वापस एक्स वाई लाइन पे यहाँ पेस्ट कर देंगे। सो ये आ गया। नाउ विल रोटेट दिस, अब इसको रोटेट कर लेते हैं, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में आर ओ, रोटेट कमांड, ये आर ओ रोटेट, ठीक है। या तो आप यहीं से कमांड लाइन पे टेक्स्ट कर दो आर ओ, या यहाँ ऊपर देखो मॉडिफाई सेक्शन में, मॉडिफाई सेक्शन में कॉपी, मूव, ये रोटेट, ये रोटेट कर, यहां से सिलेक्शन दिया, ठीक है, राइट क्लिक किया, देन क्या बोल रहा है वो कि बेस पॉइंट जिसके अबाउट आपको रोटेट करना है, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, ये दिस इज रोटेट, ये, ठीक है, इसके अबाउट हमें रोटेट करना है। ये कितना रोटेट करना है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन, वीपी से कितनी इंक्लाइंड है सरफेस, 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, सो 30 डिग्री, बट ये 30 काउंटर क्लॉकवाइज ले लिया इसने, ठीक है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड में 30 डिग्री मतलब +30 मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल, हमें नीचे की तरफ मूव करना है इसको, क्योंकि सी पॉइंट नीचे आएगा ना। सो अगेन रोटेट base point, this is the angle, so -30, ठीक है। so this is rotated by 30 डिग्री, जिसमें ये वाली जो साइड है ए बी, जो लॉन्गेस्ट लेंथ, ये वीपी में, so इसका टॉप व्यू एक्स वाई पे आना चाहिए, तो ये आ रहा है एक्स वाई पे। देन यहां से प्रोजेक्टर्स हम बनाएंगे,
तो लेट्स ड्रॉ द प्रोजेक्टर्स। सो ये लाइन यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। देन फ्रॉम दिस पॉइंट यहां से लेके यहां तक ये प्रोजेक्टर, ठीक है। ये दो प्रोजेक्टर बन गए, उनको प्रोजेक्टर का कलर दे दें जो हमने दिया था लाइंस को, ये कलर, ये प्रोजेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स यहां से, सो लाइन इस पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, सिमिलरली यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर और यहां से भी, सो फ्रॉम दिस पॉइंट यहां से दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, ठीक है। इन प्रोजेक्टर्स को हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रंट व्यू, सो दिस पॉइंट इज A1 dash, this is our B1 dash, so we'll join this, ये लाइन और ये लाइन, then this is the line और ये लाइन, ये, ठीक है। दिस इज ये लाइन और ये लाइन, ये है हमारा फ्रंट व्यू। इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V यहाँ पे प्लेस करते हैं। दिस इज A1 डैश ना, A1 डैश, और this is B1 dash, और this is C1 dash, C1 dash, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फ्रंट व्यू, सेकेंड टॉप व्यू। नाउ अब क्या करना है, इसको इंक्लाइन करना है, इसको, ये लॉन्गेस्ट एज है, इसको कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं इस जगह पे और फिर इसको रोटेट करते हैं। सो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है। कॉपी किया, कंट्रोल C, राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन और बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट यहां रख देते हैं इसको इस जगह पे, और यहां से इसको अब रोटेट करना है। तो इसको दो तरीके, इधर यू रोटेट इट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इसको थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा पास ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस जगह पे, तो ये हो गया कॉपी, ठीक है। नाउ इसके अबाउट रोटेट करना है, सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, रोटेट बेस पॉइंट, दिस इज द माय बेस पॉइंट, ओके। नाउ इसको ऐसा रोटेट करूं तो पुराने वाले फ्रंट व्यू से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे मिक्सिंग नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह से मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, दिस एंगल इज आल्सो, इस तरह से भी मैं रोटेट कर सकता हूं, ठीक है। यदि मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो ये पुराने वाले फ्रंट व्यू के साथ में इंटरसेक्ट करेगा, तो मैं इसको ऐसे रोटेट नहीं करूंगा।
आई विल रोटेट इट इस डायरेक्शन में, ऐसा। कितना एंगल, एंगल कितना हो जाएगा वो, फोर्टी फाइव है ना, कितना एंगल है, 60, 30 है सर। 30 डिग्री का है। अच्छा पहले 45 डिग्री था, तो पहले हमने 30 कर दिया। 45 होना चाहिए था, वो 30 कर दिया, कोई बात नहीं, 30। सो दिस इज 30, ठीक है। ये एंगल कुछ आई थिंक 30 नहीं, लेट मी चेक कि एंगल 30 है क्या, तो यहां से चेक कर सकते हैं डायमेंशन से। गो टू डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन आएगा, एंगुलर डायमेंशन देना ना, सो दिस इज एंगुलर डायमेंशन। ये वाला डायमेंशन यदि हम पिक करेंगे आइकन ये, तो लीनियर आएगा। हम इसकी बजाय यहां से क्लिक करेंगे, विल क्लिक ऑन हियर, सो लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन एंड एंगुलर डायमेंशन, तो एंगुलर डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे। तो एंगल ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो हमें इसको कितना करना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कर देते हैं इसको, और इसको 30 डिग्री करना है ना, सो रोटेट दिस मिड पॉइंट दिस, ठीक है। सो नाउ द एंगल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल आ गया, चेंज हो, ठीक है। सो दिस इज इंक्लाइंड विथ 30 डिग्री टू एक्स वाई। नाउ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये चेक कर लो कि ये ट्रू लेंथ है क्या। इफ दिस इज द ट्रू लेंथ देन दिस विल बी थीटा। सो a1 b1 इज, ये ट्रू लेंथ है क्या, a1 b1 डैश, this length is equal to this length and this length is equal to this length, so ये true length, so this angle is theta. Now draw the projectors, हम यहाँ से projectors ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ किया, ये लाइन, and then this is the projector and this is the projector. This is the projector. Color change कर देते हैं. So this is the projector. ठीक है. अब पुराने वाले इससे जो है horizontal projectors, तो ये रहा, ये तो XY पे ही है, तो this XY represent one of the projector, यहाँ से ये बना है प्रोजेक्टर, ठीक है. अब नाउ पॉइंट, सो दिस इज, ये कौन सा पॉइंट हुआ, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, B1 पॉइंट है ये B1, ठीक है. दिस इज B1 क्योंकि ये रहा B1 डैश और ये B का प्रोजेक्टर, ये B1. यहाँ पे फाइंड आउट करो A1, A1 ये रहा, ये इसका प्रोजेक्टर कौन सा है, ये वन. सो दिस इज द प्रोजेक्टर, ठीक है. एंड देन दिस इज C1, ये वाला, ये C1, एंड देन जॉइन दिस, कंप्लीट दिस. तो ये रहा फिगर. So this is our final front view and the top view. ठीक है. समझ में आया? यस सर. और कुछ कमांड्स भी हमने नहीं सीखी.
एक बार शॉर्टकट कमांड, रोटेट कमांड, मूव कमांड, एंगल कमांड, ठीक है, एंगल डायमेंशंस। अब क्या बता दूं? शॉर्टकट आपने वो जो शॉर्टकट यूज किए थे वो वाले शॉर्टकट्स, कमांड के लिए जो शॉर्टकट आपने यूज किए थे वो अब जो का नाम है वो टाइप कर दो। कमांड है तो टाइप करो लाइन, लाइन है तो PL। आप कंट्रोल से कर रहे थे तो मैं वही पूछ रही थी। कंट्रोल से जूम इन जूम आउट पेन, कंट्रोल C कॉपी के लिए और कंट्रोल V पेस्ट के लिए, जो हम यूज करते हैं MS वो नॉर्मल वाले, ओके ऑफिस, वही है कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, किसी भी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए, तो वही कमांड है, ओके सर। ठीक है। सो नाउ यू कैन प्लेस डायमेंशंस हियर, यहाँ पे डायमेंशंस आप दे सकते हैं इनिशियली, जैसे ये बनाया था हमने फिगर, है ना। सो दिस इज द डायमेंशन, आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन, ये डायमेंशन है। So this is the dimension text, ठीक है ना। ये वाली साइड कितनी है, ये so this is this, ठीक है, और ये वाला ये रहा। Now this dimension text are इस बहुत छोटे हैं ये, है ना। इसको देखो आप, इसको देखो, इसको देखो, so this is small, तो आप इनोटेशन पे जाओ एंड यू इंक्रीज इट्स, इसकी प्रॉपर्टीज हैं डायमेंशन प्रॉपर्टीज की, कहाँ आएगी, और यू कैन डू कि आप इसको डबल क्लिक कर लो, सो हियर ये प्रॉपर्टीज डायमेंशंस की आ जाएंगी, तो यू कैन गिव यहाँ पर इसका टेक्स्ट, डायमेंशन का जो टेक्स्ट है यहाँ से यू कैन इंक्रीज दिस टेक्स्ट, इंक्रीज कर सकते हैं। 30 हमने किया डायमेंशन टेक्स्ट, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 है, 30 mm का इंटरनेट, टेक्स्ट। सर प्रोजेक्टर लाइन कैसे लेना है? ये डायमेंशन लिखा, मैं इसका बता दूंगा डायमेंशन का भी आपको, कि डायमेंशन लाइन की जो देखो यहाँ पे एरो भी बने हुए हैं, अभी हमें दिख नहीं रहा है, वो छोटे हैं, तो जब हम डायमेंशन थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना तभी ये देखो, इस एरो की लेंथ और इसकी हाइट कुछ। सर प्रोजेक्टर कैसे लेना है? ये प्रोजेक्टर्स, ये दीज आर द लाइंस, ये लाइंस हैं, लाइन कमांड से हमने लिया है, ठीक है। लाइन कमांड हमने यूज की इसके लिए, लाइन कमांड लो, जैसे ये हमने लाइन कमांड लिया, इसका प्रोजेक्टर हमें बनाना है ये B1 से, ठीक है ना। तो ये B1 पॉइंट सिलेक्ट किया, या इसको आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ पे रख के जब ये स्नैप हो जाएगा ऑब्जेक्ट की दिस इज द एंड पॉइंट, और आप इसको मूव करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन भी बताएगा आपको, ये ग्रीन कलर से डॉटेड लाइन जो कि उसका पाथ है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें या यहाँ पे क्लिक कर दें इसके एंड पॉइंट पे, एंड देन यू ड्रॉ अ लाइन। सो वर्टिकल प्रोजेक्टर चाहिए तो हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 90 डिग्री, ठीक है, वो लाइन से सिंपली। यस सर। तो दिस इज कंट्रोल एस ड्राइंग वन, सेव कर देता हूँ मैं इसको, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे फिर, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो आज आपने कुछ लर्न किया कि नहीं ऑटोकैड का? कौन कौन सी कमांड्स लर्न की? सर ट्रिम, रोटेट करना, यस, रोटेट कमांड, ट्रिम कमांड, कॉपी कमांड, टेक्स्ट कमांड, टेक्स्ट कॉपी, डायमेंशन कमांड, जो एंगल डायमेंशन किया और ये डायमेंशन दिया, ठीक है। तो और भी कुछ हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे ऐसे तो और भी कमांड्स आएगी, और मैं क्या करूंगा, मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें हर
एक कमांड, जैसे हमने पिछली बार लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड सीखी थी, तो वैसे ही सर्कल कमांड, अर्क कमांड, रेक्टेंगल कमांड, सिंपल ये कमांड से बना बताऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now you do one thing, you type your roll number and name in the text box. मैं आज आपका अटेंडेंस वहां से लेता हूँ, ठीक है।